everyone, how are you all? Today, after such a long time, I'm back again with a beautiful chapter that is When People Rebel. Such an amazing topic. You all must know about the wonderful revolt that occurred in our India a lot of years ago, right? You all must know about it. Which revolt? 1857. This is a very, very important period in our Indian history, everyone. Okay? So, we'll talk in this chapter about, just a minute. Let me adjust. Yes, we'll discuss about the revolt of 1857. Under that, we will study that what were the consequences. What were its consequences? What happened when it happened? What was its aftermath, right? So what were the reasons? Why did the revolt occur, right? Then how was it resolved? What new policies? Then the aftermath. Then also the full explanation कि what happened, क्या क्या हुआ revolt के अंदर, right? So okay, so just a minute. Yeah, so because this is a very huge chapter, so I have divided this chapter into sections. So this is my section 1, the part 1. Every day I'll be posting its part, right? So today I'll be introducing the chapter to you. Okay, so tomorrow we'll study loss of Nawabs, failed negotiation of the families, and annexation of Awadh. Tomorrow we'll study this, then this, then this, then this, right? And soon I'll post around 7 to 8 parts I'll post for this video, because I want you all to learn this chapter very in an interesting, in an easy manner. Do not memorize it, learn it as a learn it as a story, because history is a story, isn't it? Okay, so introduction. Introduction. We'll start with the introduction to the chapter. Yeah, so when East India Company established power in India, it affected the life of kings, queens, landlords, peasants, tribals, and soldiers in many ways. I have decided a new way of teaching you all that I'll read one para. I'll explain that para in Hindi, because most of people who watch my videos are Indians. So I'll post this video 2 times, one in Hindi and one in English, right? So that would be maybe better for you as well as for me. Okay, so introduction. When East India Company established a power in India, it affected the life of Indian kings, queens, landlords, peasants, tribal, soldier in many ways. मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना रूल इस्टेब्लिश करा था, तब किस किस की लाइफ आई थी, मतलब किस किस की लाइफ अफेक्ट हुई थी, मतलब किस किस की लाइफ में अ काइंड ऑफ चेंजेस आए थे, राइट? चेंजेस इन द सेंस कि क्या बुरे बुरे चेंजेस आए थे, राइट? सो किस किस की लाइफ में आए थे? किंग की, क्वीन की, लैंडलॉर्ड के, पीजेंट के, ट्राइबल, सोल्जर के, में बहुत वेज में आए थे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सबको नहीं पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, लेट मी टेल यू. सबसे पहले अगर आपको इसको ब्रीफ में यू वांट टू नो दिस, नॉट इन ब्रीफ, अ वेरी डिटेल वन, you can visit my video on chapter 2 graded history, that's straight from territory, in which I've explained, मैंने उसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको explain करा हुआ है. You can visit that video, उसमें आपको समझ आ जाएगा. मैंने link description में दी है, and also you can click on the I button. Alright, so East India Company क्या है? EIC. EIC ब्रिटिशर है, मतलब अंग्रेज.
ब्रिटिशर्स, ओके, सो इन ब्रिटिशर्स जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी. ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मत सोचो कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी है तो इट इज़ ऑफ इंडिया. नो प्लीज. जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक कंपनी है कहाँ की? यूरोप की. राइट जो कंट्रीज ढूंढती है जहाँ पे उनको कम पैसों में चीज़ें मिल जाए एंड एक्सपेंसिव रेट पे वो बाहर बेचते. सो उनको एक ऐसी कंट्री मिली थी, इंडिया. सो होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर में आई थी तो उन्होंने किस किस की लाइफ को दुखी में डाल दिया था, किस किस की लाइफ को परेशान कर दिया था? किंग की, क्वीन की, लैंडलॉर्ड की, पीजेंट की और ट्राइबल्स की एंड सोल्जर्स की, बहुत सारे वेज में. Then, many of them revolted against the policies enforced by the British. मतलब इन लोगों में से कुछ ने तो रिवोल्ट करा था, युद्ध करा था उन लोगों के अगेंस्ट. उन लोगों के अगेंस्ट उन लोगों ने ना बहुत रिवोल्ट करा था, बहुत युद्ध टाइप करा था, लड़ाई करी थी. किसके अगेंस्ट? पॉलिसी क्या होता है? जो वो लोग नए नए लॉ लाते हैं ना, न्यू लॉज. जैसे उन्होंने एक लॉ दिया, लेट्स टेक एनी सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस एक न्यू लॉ लाए थे जिसमें कहा गया था कि अगर हम इंडियंस के पास ना हम अपनी खुद की आर्मी रख सकते हैं, ना हम अपनी खुद की आर्मी रख सकते हैं, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे ही गन यूज़ करेंगे एंड हम जो है क्या करेंगे, हम उसके लिए पे करेंगे, हम अपनी चीज़ के लिए पे करेंगे एंड ब्रिटिश हमारी प्रोटेक्ट करेगा. तो वैसे वो पॉलिसी लाए. राइट तो ऐसे बेकार पॉलिसीज लाए जिससे लोगों को गुस्सा आया. तो बहुत सारे लोगों ने उनके अगेंस्ट युद्ध करा, रिवोल्ट करा. क्लियर? नाउ द नवाब्स, सो हु रूल्ड द लैंड टिल देन. नवाब्स कौन थे? छोटे छोटे लोग. दे वर नॉट द किंग, प्लीज नॉट, दे वर नॉट द किंग. सो जो नवाब्स थे ये छोटे मोटे लाइक दे वर लाइक जमींदार की तरह था ये लोग. सो so the Nawabs were a kind of zamindars who used to collect rents from the peasant, and the peasants were so sad that they had to pay such high amounts of taxes every day. So Nawabs who ruled the land till then slowly lost all their power. तो जो वहाँ के नवाब थे, मतलब छोटे मोटे जमींदार, स्मॉल जमींदार जिसकी पावर लेस थी, उन लोगों ने क्या करा था, लैंड को वो पहले रूल करते थे, पर धीरे धीरे उनकी जो पावर थी वो ख़त्म हो गई और वो किसके हाथ चली गई? कंपनी के हाथ चली गई. द नवाब्स एंड द राजाज लॉस्ट ऑल द अथॉरिटी एंड द ऑनर. तो जो नवाब थे और जो राजा थे, नवाब और राजा, इन दोनों की अथॉरिटी चली गई और ऑनर भी चला गया. ऑनर मतलब रिस्पेक्ट. राइट इन दोनों की अथॉरिटी, ऑनर दोनों ही चला गया. कहाँ? ब्रिटिशर्स के पास. सो अ ब्रिटिश रेजिडेंट्स वर स्टेशन्ड इन ऑल द कोर्ट्स टू मॉनिटर द प्रोसीडिंग्स, thus undermining the authority of the नवाब्स. मतलब जो ब्रिटिश के रेजिडेंट्स थे, ब्रिटिश के रेजिडेंट मतलब जो छोटे मोटे जो ब्रिटिशर के काइंड ऑफ सबॉर्डिनेट होते हैं, जो छोटे मोटे उनकी हेल्प कराते हैं, वो लोग कहाँ आए थे रुकने? कहाँ? कोर्ट में आए थे, कोर्ट्स पे, ताकि वो देख सके, मॉनिटर, देख करना, डोट करना, ताकि वो देख सके न्यू प्रोसीडिंग्स, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. राइट नवाब की वो अथॉरिटी देख सके. देन नवाब्स आर्मीज वर डिसबैंडेड एंड द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स वाज रिड्यूस्ड. मतलब जो नवाब की आर्मी थी उसको डिसबैंड कर दिया था. व्हाट डू आई मीन बाय डिसबैंड? काइंड ऑफ ख़त्म कर दिया था, कॉन्फिस्केट कर दिया गया था, उसको ख़त्म कर दिया गया था. इट वाज यूजलेस नाउ. एंड जो उनकी फ्रीडम थी, फ्रीडम रूलर्स की, उसको भी कम कर दिया गया था. जैसे पहले तो उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी. अर्लियर दे डिड नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, बट नाउ दे हैड रिस्ट्रिक्शंस. दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू मैनी थिंग्स. Now, the revenue collected by the Nawab was taken by the British and the territories was also seized. मतलब जो नवाब से रिवेन्यू कलेक्ट करा जाता था वो ब्रिटिश. अब देखो, इधर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देखो भैया,
Now, what happened basically was that कि we know that जो नवाब्स थे, a kind of zamindars, they used to collect money from the peasants at very high rates. अब जो इनके पास revenue आता था, now the revenue that they used to get, कौन ले लेता इनसे? ब्रिटिशर्स ले लेते थे. क्यों ले लेते थे? बिकॉज उनके पास आ गई थी दीवानी राइट्स, राइट. इसलिए अब उनसे वो ले लेते थे. उल्टा उनकी टेरिटरीज भी उनसे ले लेते थे, राइट. या सो जस्ट अ मिनट. Many ruling families tried to negotiate with the company in order to protect their interest. मतलब जो बहुत सारी रूलिंग फैमिलीज थी उन्होंने कंपनी के साथ नेगोशिएट करना शुरू कर दिया. मतलब नेगोशिएट मतलब ओपोज करना, लड़ाई करना, उनके ओपोजिट जाना, उनके ओपोज हो जाना. ओपोज इन द सेंस उनकी बातें ना मानना. उनकी बातें उन्होंने ना मानना. इट इज सॉरी उनकी बातें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी. उनकी बातें वो नहीं मानने लगे थे कंपनी की, ताकि वो खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके. फिर हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट केसेस आते हैं. नंबर 1, द रानी लक्ष्मीबाई एंड द केस ऑफ द नाना साहेब. अब बात क्या थी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन दोनों पे ना एक चीज़ लगी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राइट, जिसके अंदर कहा गया था कि अगर आपके पास खुद का ओन सन नहीं है, मतलब बेटा, अगर आपके पास खुद का ओन बेटा नहीं है, तो जो आपकी टेरिटरी होगी वो किसको दे दी जाएगी? कंपनी को दे दी जाएगी. तो अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके पास खुद का सन नहीं था, एडॉप्टेड था. रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स को बहुत प्लीज़ करा कि प्लीज़ आप मुझे आप मेरे जो अडॉप्टेड सन है, आप उसको राइट्स दे दो, आप उसको सारी दौलत दे दो, आप उसको पावर दे दो. सेम इज विद नाना साहेब. ही वॉज एन अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू. ओके, द सेम वॉज द केस विद हिम. अब पेशवा बाजीराव ने भी प्लीज़ करा था कि मुझको भी कि मुझको भी मेरी पावर दे दो, मेरे पापा की अथॉरिटी दे दो. बट स्टिल कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी थी. ओके, सो ये बहुत बहुत बुरा हुआ था इन लोगों के साथ. एंड इसको कहते थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. दिस वाज वेरी वेरी फेमस एट दैट टाइम. सो दिस वाज वेरी पेक्यूलियर प्रॉब्लम एट दैट टाइम. इट वाज एन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर. ओके, सो yeah, then after that we have subsidiary alliance due to which अवध को annexed करा गया था. अवध was annexed in 1801. Here in 1801 a subsidiary alliance was imposed on Awadh. Governor General Dalhousie declared that the state was being misgoverned by Nawab Wazid Ali Shah and imposed a British rule for proper administration. In 1856 Awadh was taken over by the British. It was one of the last territories to be annexed by the British. So, अब हुआ क्या था? 1801 में, इस ईयर में, एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हुआ था. कहाँ? अवध पे, राइट. सो अवध पे एक सब्सिडरी अलायंस इम्पोज हुआ जिससे अवध को अनेक्स कर लिया गया. एंड जो रीज़न दिया गया था कोर्ट में, दैट वॉज कि the state was getting misgoverned. Okay. Right. So अब subsidiary alliance जो था, that was कि मैंने भी अभी आपको बताया that subsidiary alliance था कि जब आपके पास इंडियन के पास ना उनको उनकी खुद की आर्मी रखने दी, और जो उनके पास उनके खुद के रिसोर्सेज थे ना, वो दे दिए जाते थे ब्रिटिश को. एंड ब्रिटिश को यूज़ करके हमसे ही पैसे लेते थे हमारे रिसोर्सेज के. तो अवध को इस बेसिस पे क्या कर लिया गया था? अनेक्स. अनेक्स मतलब कैप्चर कर लिया था उसकी टेरिटरी को, राइट. यस, नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरो. I'm sorry, its page is a bit dirty. Yeah, hope so now it is clear.
Right, so Bahadur Shah Zafar II was the last of the Mughal emperor. Okay, so he was the last Mughal emperor who, Bahadur Shah Zafar. Now, in 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएगा, that what will happen? Yeah, so after the death of Bahadur Shah Zafar, उसकी जो family है, family of the king, would be shifted out to the Red Fort and given another place in Delhi to reside. Now, 1849 में, just 1 year after the slave trade ended, okay, हुआ क्या था? जो डलहौजी था, द डलहौजी, उसने कहा था कि जब बहादुर शाह जफर मर जाएगा, when he will die, जो उसकी फैमिली अभी रेड फोर्ट में रह रही है, उसको वहाँ से निकाल के कोई और जगह दे देंगे दिल्ली में रिसाइड करने के लिए. रिसाइड मतलब रहने के लिए. Hope that much is clear to you. Okay, moving on. 1857, after the death of Bahadur Shah Zafar, Governor General Canning decided that his descendants would not be recognized as kings, but would be called only princess. अब देखो क्या हुआ कि 1857 में इन लोगों ने एक न्यू पॉलिसी लाई जिसके अंदर कहा जाता था, अब देखो जैसे कोई एक किंग होता है, एक हेरिडेटरी सिस्टम था पहले. एक किंग मर गया, उसका जो बेटा था उसको भी किंग ही कहते थे, राइट. बट जब बहादुर शाह जफर मर गया, तब जो किंग उसके बाद था उसको हम किंग ना कहकर वी यूज्ड टू कॉल हिम ए प्रिंस, राइट. But thus slowly but decisively, the power of all the Nawabs were taken away by the British. हाँ, अब slowly जो भी इसकी power थी नवाब्स की, जो भी नवाब की पहले पावर थी उसको ले लिया गया था, right? So the powers of the Nawab were decisively and they were taken away by the Britishers, right? So this was the intro for this chapter. Basically, this chapter is nothing much, but it's very very important part of the Indian history, in which आपको बताया जाता है कि हमारी इंडिया में एक रिवोल्ट हुआ. क्यों हुआ रिवोल्ट? Why did this revolt occurred in India? उसके causes क्या थे? फिर उसके बाद हुआ क्या? आउटब्रेक क्या हुआ रिवोल्ट का? राइट. Now सबसे important, see this thing, everyone see a very very important thing, that you all now see very carefully. I will show you a timeline of the revolt, like 1857 में. I will give you a hint. I will give you one kind of idea हुआ क्या था. बहुत टाइम से ब्रिटिशर्स वर introducing new policies. They were introducing new policies, जिससे किस पे इफेक्ट आया? किंग्स पे इफेक्ट आया, क्वींस पे इफेक्ट आया और बहुत सारे लोगों पे इफेक्ट आया. अब उसके बाद जब इन लोगों को रियलाइज़ हुआ ना कि ये हमारे साथ अब ठीक नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने ना रिवोल्ट करा इसके अगेंस्ट. अब इस रिवोल्ट पे कौन कौन आया था वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक सबसे मेजर रीज़न क्या था इस पूरे चक्कर का? लेट मी टेल यू. एक सबसे बड़ा रीज़न था 1857 की रिवोल्ट का, जो आ सकता है एज एन इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट. इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट. एक गन, नॉट अ गन, एक राइफल लाई गई थी, राइफल, राइट, जिसका नाम था एनफील्ड राइफल. एनफील्ड राइफल एक राइफल थी, मतलब एक गन थी, एक बड़ी वाली गन होती है ना, बड़ी वाली गन्स. सो इट वॉज अ गन, बिग वन, जिसकी जो कार्टेज आती है, कार्टेज आपको पता है हम लोड करते हैं उसमें, तो जो कार्टेज थी वो फैट से बनी थी. किसके? काउ और पिग, मतलब काउ और पिग का जो मांस होता था उसके टैलो से बनी हुई थी. उसके फैट, उसके मांस से बनी हुई थी ये चीज़, इनकी कवरिंग ऑफ द कार्टेजेस. ओके,
इस कार्टेज की कवरिंग बनी हुई थी फैट ऑफ काउ एंड पिग्स. अब हिंदू जो थे वो कहते थे कि अगर हमने काउ वॉज वेरी सीक्रेट फॉर देम, सो दे सेड कि अगर हमने काउ को खा लिया ना, वी वुड बी इम्प्योर, वी वुड हर्ट आवर रिलीजियस what do I say that, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, राइट. सो उनके इस केस में रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होते थे. और जो मुस्लिम कहते थे कि पिग ना बहुत अनक्लीन होता है, हम पिग नहीं खा सकते. सो इससे दोनों के मन में बहुत अ काइंड ऑफ व्हाट डू आई से दैट, रिलीजियस सेंटिमेंट्स दोनों के बहुत हर्ट हो रहे थे. तो ये बहुत बड़ा रीजन बना था, आई एम सॉरी, रीजन कह रही हूँ. It was a very, 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 very important and very big reason for the revolt of 1857. Hope this is clear to you, is it? Right? So this was, a major reason, why this all happened. Now, we come to the end of this intro, everyone. Hope you all have understood this thing very, very, very clearly, right? Okay, so now a very important thing for you all is, if you got your topics clear, you have to do 3 things as your homework. First of all, like this video. Number 2, share this video. Number 3, subscribe to my channel for more such videos. Okay, so I post videos, why working very hard for you. As you can see, it's 10:09 p.m. in my clock right now. I'll post this video tomorrow. So it takes me a lot of hard work. I have to manage my studies as well as for you people. And if you people are only not supporting me, how will it work, right? Please do these 3 efforts for me. I'm doing so many efforts for you. You can do at least these 3 efforts for me, right? Like my video, share my video to your friends if you found it very useful, and very important, subscribe to my channel if you want that more people should watch my video. Okay, so thank you. I'll meet you in my next video that will be posted tomorrow. If you have any doubts, write it in the comment box or email it to me at the given ID in my description box, nitikaanand2510@gmail.com. You can email me your doubts or you can write it in the comment section. Okay, so till then, take care, stay safe, and